Assalamu alaikum students. My name is Ms. Anika Saidzia. I'm from University of Education, Bank Road Campus, Lahore, and I'm your principal course instructor for the subject Advanced Painting. Um, First, there is your course outline. You have introduction, looking back to the past, monochromatic tonal painting, importance of symbolic elements, practical assignments on composition. Then there is practical assignments on composition, preliminary sketches, painting on myself, master copy, in which you will use a mirror, not a photograph, introduction project on color harmony, modern concepts, social thoughts, self-portrait using palette knife technique. After World War II, reclined foreshortened figure pose, color shape composition, portrait painting, self-portrait from mirror or trade painting. So today we are going to cover the topic of modern concepts. What do we mean by modern concepts in painting? मॉडर्न आर्ट आप लोगों ने पढ़ा है. मॉडर्न आर्ट स्पेसिफिक एरिया को जो है, स्पेसिफिक एरा को सॉरी, जो है वो कवर करता है और उसके अंदर डिफरेंट आर्टिस्ट हैं. ऑलरेडी आप उसको स्टडी कर चुके हैं. बट अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आपके जो हैं कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ भी आ जाते हैं. मॉडर्न कॉन्सेप्ट से मुराद ऐसा काम है, ऐसे आर्टवर्क्स हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी होती है और जो कि आपके करंट इश्यूज़ पे बात हो रही हो या कंटेम्प्रेरी जो है, जो काफ़ी कंटेम्प्रेरी हो और ना सिर्फ आपके सब्जेक्ट मैटर में बल्कि उसके मीडियम में भी जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी कंटेम्प्रेरी हो और उसका आइडिया भी काफ़ी कंटेम्प्रेरी हो. एक क्रिएटिविटी नज़र आए उसमें, तो हम उस चीज़ को जो है वो ज़रा मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में जो है कंसिडर करते हैं. सो हियर इज़ द वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट समीना इस्लाम. अब आप देख सकते हैं ये जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंटेम्प्रेरी आइडिया जो है उसको पिक किया है अपने आर्ट वर्क में पोर्ट्रे करने के लिए. बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा करंट सिचुएशन है. जैसे आपको पता है कि ये कोविड-19 जो है उससे उसको उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है और बहुत ही पॉजिटिवली जो है, पॉजिटिव वे में जो है उसको पोर्ट्रे किया है. बट यू कैन से कि काफ़ी इनडायरेक्टली उन्होंने काम किया है, हिडन वे में काम किया है. आपको डायरेक्टली पता नहीं चलता कि इस आर्ट वर्क का जो है वो सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है. Needlework is a form of self expression and meditation for her. It is addictive, and the freedom of this medium is exciting. There are unlimited possibilities to explore. She used to say that my art practice is very time consuming as most of my pieces are stitched by hand. सो आर्टिस्ट ने क्या किया है, डिफरेंट मीडियम्स को एक्सप्लोर किया है. शी इज़ ऑल्सो डूइंग एम्ब्रॉयड्री, नीडल वर्क, एंड शी इज़ ऑल्सो डूइंग यूजिंग मार्कर्स एंड डूइंग डूडलिंग. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शी हैज़ ऑल्सो डन सम ड्राइंग, सम स्केच वर्क. सो इस आर्ट वर्क में हमें एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज नज़र आता है कि जैसी भी कंडीशन है, इफ़ यू आर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, इफ़ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्ट कंडीशंस, तो आपको पैनिक होने की बजाय अपना जो माइंड है उसको पीसफुल और हेल्दी रखना चाहिए, ताकि आपका जो आपकी जो सराउंडिंग है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो भी उससे इफ़ेक्ट ना हो और एक पॉजिटिविटी जो है वो एक इस्टेब्लिश रहे. Experimenting with different threads and textiles is part of the process. Combining photography with textiles and thread nurtures my creativity and keeps me excited about my work. So, as you can see, she has used markers as well as fabric and photography as well. उसके बाद नौशीन सईद हैं. She is also a visual artist and she also used to explore different mediums, and she used to experiment with different mediums and create an idea. Nasheen Said is renowned for her handling of pro-feminist and politically generated figurative sculptures, particularly those overtly using the female body subject to control through objectification in different contexts.
Saeed worked with headless, thus devoid of identity, female bodies which appeared to be crossed with animalistic features, in some cases morphed into animals, thematically representing butchered meat. सो जो विजुअल्स हैं वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि आई कैची हैं और एकदम से आपको आपकी सेंसेस पे जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि आप एनिमल्स को बुचड शॉप्स में देखते हैं स्लॉटर होते हुए, उस तरह से उन्होंने जो है वो फीमेल्स को दिखाया है। बट उसका जो इनर जो इमोशन है वो जो है एक कमेंट है, एक हमें तनकीद नज़र आती है सोसाइटी की जो अप्रोच है टुवर्ड्स फीमेल्स, और जिस तरह से फीमेल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, उनके माइंड को या उनकी पर्सनालिटी को, उस चीज़ के ऊपर जो है आर्टिस्ट ने एक कमेंट किया है। शी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मीडिया referencing traditional femininity such as textiles, milk canisters, even perishable materials such as humble bread. So artist ने different जो है materials को explore किया है। सिर्फ ऐसे मीडियम्स ने एक्सप्लोर किए जो कि परमानेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फाइबर ग्लास है, बट शी हैज़ ऑल्सो यूज्ड द ब्रेड, द मटीरियल ऑफ ब्रेड, जो कि इंसान की एक बेसिक जो फूड है, जो नेसेसिटी है, उसके साथ उसको एसोसिएट किया जाता है। तो उसके उसके उस तरह का भी मटीरियल जो है वो उन्होंने यूज़ किया है, जो कि ईजिली पेरिशेबल है। तो सईद्स आर्ट वर्क रिकॉर्ड्स द वाउंड्स inflicted by domestic violence, forceful and hegemonic masculine practices that are still prevalent in our contemporary age. Her figures may be voiceless, yet their rallying cries for autonomy, respect, and equal status ring loud and clear. उसके बाद जो हमारे पास आर्टिस्ट हैं, शी इज़ नौरीन शिबली, शी इज़ अ मिनिएचर आर्टिस्ट, and she also works on the modern concepts and the contemporary ideas. So she, according to her, whenever I saw the traditional miniature paintings, I wished to be a part of that fantasized world. Alas, I cannot go back into that period, but can enjoy the charm of that era through my artworks. सो ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग की, जिसमें हमें ज़्यादातर मुगल्स और इसमें हमें मुग़ल मिनिएचर्स और पर्शियन मिनिएचर्स नज़र आते हैं, और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो है वो जॉनरा नज़र आता है, आर्किटेक्चर नज़र आता है, मोटिव्स नज़र आते हैं। तो उस सेटिंग को जो है वो आर्टिस्ट ने एक्सप्लोर किया है। बट क्योंकि वो करंट एरा में है, तो आर्टिस्ट जो हैं वो उसको एक्सप्लोर करना चाह रही हैं विद कंटेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बहुत मॉडर्न जो एक फ़ीमेल फिगर है उसको रिप्रेजेंट किया है, और जो सेटिंग है बैकग्राउंड की वो ओल्ड आर्किटेक्चर हमें नज़र आता है, स्पेशली जो हमें मुस्लिम आर्किटेक्चर नज़र आता है उससे इंस्पायर्ड है। और वो जो कैनोपी है, जो अम्ब्रेला है, उस पे कोको कोला का एक आपको ब्रांड नज़र आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी जो है इस मिनिएचर में नज़र आता है। So I used to visit that historical spaces, explore the books in commemoration of them, and document my pleasant moments. Here is another work by the same artist. I took reference from past and make a future for new world on laptop Vasli. On tabletop Vasli. Sorry, I call it recitation in the process of transformation of a visual. I can say my current work is a discussion in between my fantasy and the consumerist war. उसके बाद हमारे पास एक और आर्टिस्ट हैं, शिबली मुनीर। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी कंटेम्प्रेरी विजुअल आर्टिस्ट, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं अपने विजुअल्स के साथ भी और अपने मीडियम्स के साथ भी। His work is kind of ironic sometimes. He used to paint along with colored prints of different monuments and other elements representing our culture and history. जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, हमें
डिफरेंट फेमस मॉन्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं लाहौर के, जिसमें मीनार पाकिस्तान है, चुबुर्जी का एक वो बुर्ज है, और एक तरह से कमेंट किया गया है कि वो बुर्ज भी एक तरह से टूट चुका था। और अगर आप देख सकते हैं तो हमें डिफरेंट जो हैं वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस नज़र आ रहे हैं। और एक यहाँ पे भी आयरॉनिक वे में कमेंट किया गया है कि किस तरह से जो सुपर पावर्स हैं, जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, और वो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं हमारे कल्चर को, हमारे माइंड को। और हम भी कहीं काफ़ी हद तक जो है रिस्पॉन्सिबल हैं इस डैमेज के लिए जो कि हमारे कल्चर को हुआ है। He used to make a comment on this practice that how superpowers on Western culture has influenced our culture, and because of this we have forgot about the importance of our own identity. We have lost it to some extent. तो काफ़ी हद तक हम उसको डैमेज कर चुके हैं, उसे लूज़ कर चुके हैं। तो उस चीज़ के ऊपर जो है हमें एक सोचने की जो है ज़रूरत है, फिक्र करने की ज़रूरत है। There is another artist, Azadeh Ghotobi. Azadeh work explores concepts of destruction and renewal as formal gestures representing the tenacity. They highlight the heightened sense of awareness that is often developed in response to the complexity of exile. Gothby begins by cutting fully executed compositions into strips of canvases that are then assembled as a new artwork. सो आर्टिस्ट बेसिकली क्या कर रहा है कि इसमें डीकंस्ट्रक्शन कर रहा है, फिर से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। मीन्स कि आप ऑलरेडी किसी इमेज को किसी ऑब्जेक्ट को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, और दोबारा से आप उसको जो है उसी मटेरियल से जो है उन्हीं पीसेस से जो है आप एक न्यू आइडिया जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आर्टिस्ट ने यही किया है कि इमेज जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज को कट डाउन किया है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, और उन स्ट्रिप्स को फिर यूज़ करके अगेन जो है कंपाइल करके एक न्यू विजुअल क्रिएट करने की कोशिश की है। The resulting work is fragmented yet stitched together as an intricate amalgamation of color, lines and textures. सो आर्टिस्ट जो है बेसिकली टेक्सचर को जो है वो इन्जॉय कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। जो हमें स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं कंबाइन हुई हुई, और जो कलर नज़र आ रहा है, और जो लीनियर क्वालिटी नज़र आ रही है हमें पूरे कैनवस में, उस पे वो है कमेंट कर रहा है, उस पर बात कर रहा है। उसके बाद एक और आर्टिस्ट है हमारे पास, किरण सलीम। किरण सलीम investigates this aspect of ecological nightmare in her Untitled, with a goldfish inside a plastic bag filled with water, a metaphor for human existence in the future, with looming threats to animals, sea life, plants, and mankind. So, फिश का पानी में होना, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट अगर वो किसी शॉपिंग बैग में है, इस तरह से बंद है, तो वहाँ पे जो है आपको एक वो चीज़ पिंच करती है, दैट वाई द एनवेलप इज़ क्लोज्ड, नॉटेड। तो वो चीज़ हमें नज़र आती है यहाँ पे। हर meticulously painted canvas reaffirms that an artist can communicate a grim tale in tones of Getty. सो आर्टिस्ट ने एक तरह से कमेंट किया है जो एक ह्यूमन बींग्स की हमें नज़र आती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में, जो एक पार्ट प्ले करते हुए, एक रोल प्ले करते हुए ह्यूमन बींग्स नज़र आते हैं। तो वो चीज़ जो है इन फ्यूचर हमारे लिए काफ़ी जो है वो हार्मफुल हो सकती है। तो उसी चीज़ को जो है आर्टिस्ट ने एक्सप्लोर किया है अपने इमेज में। उसके बाद आर्टिस्ट हैं सबा हरून। उनकी जो पेंटिंग है उसके अंदर हम देख सकते हैं दैट अ यंग गर्ल इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ ओरिगेमी क्रेन्स। ओरिगेमी क्या होता है? ओरिगेमी एक टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ पेपर यू क्रिएट डिफरेंट एनिमल्स एंड शेप्स, और उसकी प्रॉपर स्टेप्स होते हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। लाइकवाइज इन हर अदर पेंटिंग Disenthral 2, a girl is holding the same bird again, a paper origami. Inspired by a Japanese legend, the work revolves around the contradiction of hope, future, and hopelessness.
तो हमें दो ऑपोजिट आइडियाज़ एक ही जगह पे नज़र आते हैं। एक तो होप का एलिमेंट, जो कि हम अपने फ्यूचर में एक होप हमें रहती है कि हाँ भाई अभी नहीं तो चले कमिंग डेज़ में, अभी नहीं तो कमिंग कमिंग मंथ्स में या कमिंग ईयर में, कमिंग लाइफ में जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, हो जाएंगी। और होपलेसनेस जो आप प्रेजेंट में, आपको अगर आप होपलेस हो जाते हैं, आपको पता है करंट सिचुएशन अगर है ऐसी, तो आप होपलेस हो जाते हैं। तो अगर हम देखें एट द बैक साइड ऑफ गर्ल, हमें एक हालो भी नज़र आ रहा है, एक सिंबल नज़र आ रहा है जो कि होप का सिंबल भी है, क्योंकि वो सन को भी रिप्रेजेंट करता है, ब्राइटनेस को, और सन को भी हम जो एसोसिएट करते हैं एक न्यू डे के साथ, एक न्यू एरा के साथ। और बट एट द सेम टाइम जो होपलेसनेस है वो भी हमें नज़र आ रही है। और वो जो ओरिगेमी, जो पेपर के बने हुए कागजी जो हमें परिंदे नज़र आ रहे हैं उड़ते हुए, उसके साथ हमें एक जो है वो होपलेसनेस का भी एलिमेंट नज़र आता है। उसके बाद आर्टिस्ट हैं राबिया एलियास। Similar content is constructed by Rabia Elias in Gather Together, comprising two pieces of a jigsaw puzzle, one green and the other white, that fit into each other. They realize and reminds us of the necessity to have plural views in a society. सो आर्टिस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक आइडिया को जो है कम्युनिकेट किया है कि अगर आप सिंगुलर ही, अगर सोसाइटी में एक सिंगुलर ही होगी थॉट, एक ही वे होगा सोचने का, एक ही एस्पेक्ट से हम सोचेंगे, तो फिर हम कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। देयर शुड बी टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ताकि अगर कोई एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। समटाइम्स नेगेटिविटी भी अच्छी होती है, नेगेटिविटी से भी कोई पॉजिटिव बात सामने निकल आती है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि बुराई है तो बुराई से भी अच्छाई निकल आती है। अगर सब कुछ अच्छा ही होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि बुरा क्या है, फिर बुरा होगा तो आप अच्छे की तरफ जाएंगे, उसको कंपैरिजन करेंगे। सो ये चीज़ जो है बहुत इंटरेस्टिंग है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो, उनको आपस में साइड बाय साइड जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। तो a difference of opinion is not a damaging factor, but a positive point, as it protects societies from extremism and narrow mindedness. Her choice of material, mirror on wood and plaster, accentuates this meaning, since due to lights and reflections, the green mirror hardly remains a slight tint of green, and white is not purely white, both share shades of each other. सो आर्टिस्ट ने जो रिफ्लेक्शन क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ ग्लास और ग्लेस्ड लुक के साथ, तो उससे ये हेल्प हो रहा है कि दोनों के जो कलर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे के इमेज का पार्ट बन रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्चुअली भी जो है एक अमेलगमेशन हमें नज़र आता है। सो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है उसमें आपको जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रेलेवेंट काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और जो आप ड्यूरिंग क्लास जो है वो भी आप एक असाइनमेंट करेंगे ऑन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आप इसी तरह से कोई भी अपने कंटेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट्स के साथ, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के ऊपर जो है आप एक आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे और जो है आप गूगल क्लास पर सबमिट करवाएंगे। और जो मीडियम है वो भी आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन इसमें कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।